He got disconnected or what? Good evening, everyone. Good evening, everyone, and welcome to Expert Chat. And today we will be discussing careers opportunities in the fitness industry. You know, in these years, uh, the growth the fitness industry has seen is enormous. It is due to the kind of health awareness among the youth, or be it uh, everyone, be it youth or anyone seeking to have a good health, is going to a gym or having a personal fitness trainer, or in general would like to have a good health. They like to maintain the nutrition and health of their body. So the opportunities are enormous, and people are not aware how they can get into this fitness industry, the kind of education that is needed. For this purpose, today we have with us our expert who is running his own chain of gyms, and he will be able to guide us, and in conversation with Sunanda Rao, the kind of opportunities fitness industries throws to us. And if I talk about Sunanda, she is a founder with the concept. She is a managing director of Career Beacon magazine and a convener for National Career Counselors Network. And she is, I would say, a career guide, or she's a writer, columnist, regular columnist in Amar Ujala, where she's guiding the students with regard to their queries. And she is also expert in psychometric assessment and mind mapping tool to help the student realize their fullest potential and the sustainable career they can pursue in their future. So with that, I like to welcome Sunanda to initiate today's conversation with Mr. Sonu until with regard to career opportunities in fitness industry. Over to you, Thank you. Sonia. Thank you so much, Kavita. Welcome all the viewers to the Experts Chats. As you know, every week we always bring a new speaker to you who is going to discuss about the industry, which is really prominent in that. And today, last time when we have actually spoken to Mr. Sunny Rathore, who was an actor, we thought एक एक्टिंग के करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक फिटनेस का. So why can't we have a fitness specialist who can actually talk to us today and will share an insight about कि आप फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे जा सकते हैं, अगर आपको करियर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा. और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर सोनू अंतिल, जो कि हसल फिटनेस जो जिम है वो उसके मालिक हैं, और प्लस वो एक बॉडी बिल्डर रह चुके हैं. सो नमस्कार सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक्सपर्ट चैट में. सर आप थैंक यू सुनंदा बहुत जी. थैंक यू सर. आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं जिसमें मतलब फिटनेस का तो खैर बहुत बड़ा रुतबा होता ही है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये शौक जी कब से चढ़ा कि फिटनेस में जाना है. एक्चुअली जो मेरे फादर थे वो एक रेसलर थे और वो आर्मी मैन थे, आर्मी में थे वो. तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही मतलब स्पोर्ट्स की तरफ रखा मुझे कि जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो. तो वो चाहते थे कि मैं उनकी तरह पहलवान बनूं, क्योंकि वो खुद एक पहलवान थे आर्मी में. तो वो चाहते थे कि मैं अखाड़े में जाऊं, लेकिन मैं क्या करता था, अखाड़े में थोड़े दिन में गया, लेकिन उसके बाद हमारे अखाड़ा जो था जहां मैं जाता था उसके पास एक जिम खुल गया. और मुझे थोड़ा सा जिम की जो बॉडी थी वो ज्यादा पसंद थी. तो मुझे शौक हुआ कि नहीं, अखाड़े में थोड़ा लेट बॉडी बनेगी तो क्यों ना जिम ज्वाइन किया जाए. तो मैं जाता था घर से अखाड़े के लिए, लेकिन मैं एक्चुअली जिम में भाग जाता था. तो इस तरह से मुझे धीरे धीरे शौक बना. और इसके पीछे जो है वो मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो हमेशा ऐसी बातें मोटिवेट करते रहते थे कि बॉडी है, शरीर में जान है, आप अच्छे दिखोगे, आप कोई बीमारी नहीं होगी आपको.
तो आपको ना फिट रहना चाहिए। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी हेल्थ के पीछे। चलिए, ये तो हुई कि आपने कैसे इसमें एंट्री की, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री में कोई अगर जाता है तो फिर एक सेल्फ मोटिवेशन की और सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत बड़ी कमी होती है। या तो हमारे जी पीछे जी कोई डंडा लेके पड़े, जैसे आपने कहा आपके फादर बहुत ज्यादा करते थे, तो जी जी जी। आपको खुद का ये मोटिवेशन कैसे आता है कि भाई आपको रोज फिटनेस में जाना है? मतलब ऑब्वियसली चटोरी चीजें नहीं खानी है, कहते हैं दंगल पिक्चर में देखा था कि भाई चटपटी चीजें नहीं खानी है, डिसिप्लिन में रहना है। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन का इग्नाइट कैसे हुआ आपके अंदर? आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे दंगल फिल्म में दिखाया है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और दंगल फिल्म में आपने देखा होगा कि लोग डिमोटिवेट करने वाले बहुत होते हैं कि लड़कियों को तो ऐसे क्या सिखा रहा है। ऐसे ही एक्चुअल मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैंने जिम ज्वाइन किया, तो उसके बाद जब मैं जिम करके घर जाता था, तो मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे थे, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से रहने वाला हूँ। मैं सोनीपत के पास मेरा गांव है, दीपालपुर। तो मैं बहुत छोटे गांव का हूँ, बहुत छोटे गांव से निकल के आया हूँ मैं। तो वहां भी ऐसे बहुत सारे लोग मुझे भी मिले थे कि जिम ही आ गया, ये देखो बॉडी तो बन नहीं रही। मुझे 4-5 महीने हो गए थे जाते हुए कि बॉडी तो बन नहीं रही, क्या बॉडी बनाएगा, जिम ही आ गया। मतलब ऐसे डिमोटिवेट करने वाले आपको बहुत दुनिया मिलेगी, जो आपको आपके ट्रैक से ना हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपना माइंड सब कुछ सेट करके रखना पड़ता है। और अगर आपको एक अच्छा फिजिक चाहिए, आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है, मॉडल बनना है या ट्रेनर बनना है या जिम का मालिक बनना है, कुछ भी है, तो उसके लिए एक अच्छी बॉडी चाहिए। और एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको ना अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा करना पड़ता है खाने पीने का। और फिल्म में भी बिल्कुल सही दिखाया गया कि चटपटी चीजें नहीं खानी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारा मन करता है लेकिन हम नहीं खा पाते। फॉर एग्जाम्पल, कई बार खुद मेरा मन करता है कि आज छोले भटूरे खाने हैं, लेकिन नहीं खा पाते, क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, तो उन चीजों से हमें हटना पड़ता है। फिर हम नहीं खा सकते। बहुत सारा जब हमारा कटिंग फेस टाइम होता है, जैसे कोई कंपटीशन है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है, तो उस टाइम पे हमें खाना पीना बहुत कम करना पड़ता है, सिर्फ प्रोटीन डाइट पे रहना पड़ता है। पानी बिल्कुल छोड़ना पड़ता है, नमक बिल्कुल छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल मतलब एक किस्म से ये लगा लो कि बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है, तब जाके आप एक अच्छा शरीर बना पाएंगे। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, और वो हमें माइंड इतना स्ट्रोंग करना पड़ता है अपना, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग, तब जाके वो काम होता है। बहुत ही ज्यादा टफ चीज बोली आपने। जी वेल व्यूअर्स, फिजिकल फिटनेस इज नॉट ओनली द मोस्ट important टू a healthy body, is the basis of dynamic and a creative intellectual activity. This is not said by me, this is said by John F. Kennedy. And a strong body, mind resides inside a healthy body. एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है एक स्वस्थ बॉडी के अंदर रह सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सर, अगर आप ये बताइए सोनू जी, अगर जैसे अभी तो आपने खुद के इस पे कहा, अगर कोई बंदा स्टेप बाय स्टेप इस प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कोई भी इंसान है अगर जैसे फिटनेस इंडस्ट्री में ही आना चाहता है, या कोई भी मतलब फिटनेस से जुड़ी चीज में जाना चाहता है, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपना माइंड स्ट्रोंग करो कि मुझे ये चीज करनी है। वो उनके खुद के ऊपर है कि अपना माइंड स्ट्रोक करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे नए नए स्टूडेंट आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो जैसे महीने का पैकेज लिया, या 3 महीने का पैकेज लिया, 6 महीने का पैकेज लिया, या साल का लिया, तो 3-4 दिन में, हफ्ते में छोड़ के भाग जाते हैं। और कभी वो कहीं मिले या उनको कॉल करके पूछो कि सर आप आ नहीं रहे, अरे नहीं सर मेरे तो यहाँ पेन हो गया, मेरे तो पेट में पेन हो गया, मेरे तो शोल्डर में पेन हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत तो पेन होगा ही होगा, वो आपको सहना पड़ेगा। वो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सहना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि ये एक किस्म की तपस्या ही है। क्योंकि आपको अपनी जुबान पे भी लोक लगाना है, आपका माइंड भी स्ट्रॉन्ग करना है, और अपना शरीर भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप यही है कि पहले अपना माइंड ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, कि मुझे इसके अंदर जाना है। सबसे पहले हमारा माइंड, फिर हमारा शरीर। अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि मैंने इस चीज में घुसना है, कोई भी है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी चलाना है, चाहे वो पढ़ना है, या कुछ भी है, तो एक टारगेट लेके चलना पड़ता है अपने दिमाग में कि हमें ये टारगेट है, उसके अलावा हमें कहीं नहीं देखना। तो वो जब टारगेट आप लेके चलोगे तो कोई भी कामयाब हो सकता है।
So, viewers, अभी आपने सुना, first thing is that you have to have a strong mind, that is focused mind, कि आपको कहीं और किसी और तरफ deviate नहीं होना है. Second चीज ये है कि बहुत लोग मिलेंगे जो आपको demotivate कर सकते हैं. So you have to keep your focus towards the goal only. And people who would like to actually attend any of the regular academic program in the physical fitness, just for you, I would like to say that there is a Physical Education Sports Sciences Institute in New Delhi, Lakshmibai National College of Physical Education in Thiruvananthapuram and Gwalior, and Sports Authority of India. There are multiple places where you can actually be a physical instructor and a physical fitness instructor. In fact, there is a college in Saket which actually trains the people how to come into the fitness industry. And fitness industry में सोनू जी एक बात पूछनी थी, क्या सिर्फ जिम के अंदर ही हम फिटनेस इंडस्ट्री कर सकते हैं या कहीं और भी हमारी फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हैं लोग? बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें दो रास्ते हैं, या तो आप अपना खुद मेंटेन करके अपना कोई जिम खोल सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हो या बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। तो तीन रास्ते हैं इसमें, क्योंकि मॉडलिंग के लिए भी अगर आप मॉडलिंग करना है, एक्टर बनना है, तो उसमें भी आजकल हम कोई भी फिल्म देखते हैं तो कोई भी एक्टर है, कोई भी है, तो हम जब वो उसके सिक्स पैक दिखते हैं या कुछ भी दिखता है तो हम बड़े खुश होते हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो उसके लिए भी आपकी फिटनेस बहुत जरूरी है। और अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए तो जायज है कि उसके लिए तो फिटनेस जरूरी होगी ही होगी। तो यही चीजें हैं कि फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें तीन लाइनें हैं, आप तीन जगह आप जा सकते हो। तो आप बॉडी फिटनेस में जा सकते हैं, मॉडलिंग में जा सकते हैं, या फिटनेस के जो इसमें जा सकते हैं। अगर किसी बंदे को एक्टिंग में जाएंगे, एक्टिंग की बात है, so how can one decide कि is it the right career for me or not? मतलब मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है या नहीं जाना है, कैसे कोई बंदा डिसाइड कर सकता है इस चीज के? ये मतलब वन इज द माइंडसेट, वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को अगर डिसाइड करना है तो कैसे कर सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ इसमें, कि जैसे मैंने चूज किया कि मैंने इस इंडस्ट्री में जाना है और अपना जिम खोलना है और अपना बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो वो चूज जैसे मैं स्टार्टिंग से करता आ रहा था। जब मैं जिम करने जाता था तो जो आसपास के लोग थे वो मेरे से पूछते थे कि आपकी बॉडी बड़ी अच्छी है, अब हम बाइसेप्स करना है तो हम ये करें, हम क्या खाएं, हम क्या पिएं। तो ऐसे में उनको सलाह देता रहता था कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ऐसे करते करते मुझे काफी टाइम हो गया था। तो फिर मेरे खुद के दिमाग में आया कि क्यों ना एक जिम खोला जाए। तो उस टाइम पे मेरे एक जीजा जी थे, डॉक्टर शमशेर सिंह, उन्होंने स्टार्टिंग में मेरी हेल्प की दिल्ली में कि हमारी खुद की जगह है, आप वहां पे आओ, आपकी बॉडी अच्छी है, आपको नॉलेज भी है, अगर आप वहां पे जिम खोलोगे तो आप चला भी सकते हो। तो इस तरह से मेरी एंट्री हुई। ओके। और फिर मैंने खुद भी सोचा कि क्योंकि मुझे किसी और चीज से ज्यादा नॉलेज, सबसे ज्यादा नॉलेज जिम की ही है, तो क्यों ना इसी के अंदर जाया जाए। वो डिपेंड करता है, अगर आपको जिस चीज की नॉलेज है तो कोई भी है, अगर किसी को जिस चीज में उसकी रुचि है, जिस चीज को खुश होके कर सकते हैं, जैसे मैं हूं, मैं खुश होके करता हूँ। मतलब एक तरह से जिम मेरे लिए ये है कि अगर मैं एक दिन जिम में ना हूं तो ऐसा लगता है कि मैं मर गया, मैं जी नहीं सकता जिम के बिना। तो एक शौक भी है मेरा, और मेरा ये लाइफ भी बन चुकी है मेरी। तो जिस चीज में जिसका शौक है, मैं कहूंगा कि उसको उसी दिशा में जाना चाहिए। वेरी वेल। व्हाट इज द डिमांड एंड सप्लाई नेशनल लेवल पे क्या है आजकल? जिम की बात नहीं करी मैं, फिटनेस इंडस्ट्री में इंस्ट्रक्टर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिम पे भी हम आएंगे। जो दिख रहा है कि जिम एक बहुत कॉस्टली अफेयर है, दैट लुक्स टू बी, बट मैं पहले डिमांड एंड सप्लाई की बात करना चाहूंगी। जो अच्छे लेवल के ट्रेनर होते हैं, बहुत बढ़िया, जिनकी नॉलेज होती है, जो अपना अच्छे लेवल पे बॉडी बिल्डिंग खेल चुके हैं, जिनकी जान पहचान ज्यादा होती है, जिनका नाम आगे चल जाता है, तो उन्होंने बड़े लेवल पे, उनको बड़े स्केल पर अच्छे अच्छे जिमों से ऑफर भी आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो उनका काफी, अब जैसे हमारे प्रवेश खत्री भाई हैं, इंडस्ट्री में काफी नाम है, मोहम्मद अशरफ जी हैं, उनका काफी नाम है, सुहास खामकर जी हैं, बहुत बड़े लेवल के हैं, पूरे सब जानते हैं उनको, वीरेंद्र गोमन जी हैं। तो ऐसे जिनका नाम हो जाता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा स्कोप है आगे जाने का, बहुत ज्यादा।
लेकिन उसके लिए मैटर करता है कि आपने इस इंडस्ट्री में कितनी नॉलेज है, जितनी नॉलेज है आप उतना आगे जाओगे। एक चीज मैंने ये भी सुना था कि एक पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, जैसे आप विराट कोहली ले लीजिए या कोई बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन ले लीजिए, और जी जी जी। या कई बार जैसे करीना कपूर ने अपना जीरो फिगर किया, या बहुत से लोग अपने जीरो फिगर की तरफ आते हैं और अपने आप को पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में क्या ये सिर्फ जिम का काम होता है या डाइटिशियन का काम होता है? क्योंकि एक तरफ हम रुजुता दिवाकर का नाम सुनते हैं जो कि फेमस सेलिब्रिटी डाइटिशियन है, एंड शी सेज दैट शी इज द पर्सन बिहाइंड इट। कुछ लोग कहते हैं जिम का काम है। सो वी वुड लाइक, सिंस यू आर फ्रॉम द फिटनेस इंडस्ट्री, हमें आपसे जानकारी चाहिए कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या दोनों चीजें काम करती है, फिटनेस और न्यूट्रिशन दोनों काम करता है या कैसे काम करता है? अगर इफ यू कैन शेयर द इनसाइट्स। देखिए, अगर आप डाइट का लेके चलें और जिम का लेके चलें, तो जिम जो है वो मैं मानता हूँ कि 30% है 100 में से। ओके, आपका, क्योंकि कोई भी है, देखिए बॉडी जिम में नहीं बनती। जिम में आप आते हो, वर्कआउट करते हो सिर्फ अपने मसल को डेवलप करने के लिए। कोई भी है, चाहे आपको लीन करना है या बढ़ाना है, कुछ भी करना है, ठीक है। तो जिम होता है एक सिर्फ उसको एक्सरसाइज की, लेकिन बाकी आपकी जो बॉडी है वो घर में बनती है डाइट से। तो इसमें डाइट का मैं रोल 60% मानता हूँ, ठीक है। तो ओके, डाइट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर आपको नींद चाहिए, प्रॉपर आपको डाइट चाहिए खाने के लिए। अगर आप लीन पे जा रहे हैं तो उसकी डाइट अलग होती है, आप साइज बढ़ा रहे हो, कटिंग डाल रहे हो, तो उसकी डाइट आपकी अलग है। लेकिन जब तक आप डाइट नहीं लोगे, खाली जिम जिम करोगे, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। और खाली आप डाइट डाइट करोगे, जिम नहीं करोगे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी नजर में। परफेक्ट। सो 2 मिनट मैं सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन द फिटनेस इंडस्ट्री इज वेरी ह्यूज. Qualified fitness instructors are required at different places, no matter whether it's a film industry, whether it's an entertainment industry, whether it's an education industry or a fitness industry. Wherever you want to go, you can actually see that there is a fitness is something that is actually on the first top priority. Now coming back to the same question, sir, demand and supply की बात हम कर रहे थे, नेशनल फोकस के हिसाब से या इंटरनेशनल फोकस के हिसाब से वी आर सीइंग दैट यूएस, कनाडा, जर्मनी, यूके, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आर मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू इंडिया फॉर द फिटनेस इंस्ट्रक्टर. आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज द मेजर रीजन कि इंटरनेशनल मार्केट इज मच ग्रोन एज कंपेयर टू द नेशनल मार्केट? हमारे जो बॉडी बिल्डर हैं इंडिया के, और जो हमारे ट्रेनर हैं, वो जो बाहर के लोगों से या बाहर के जो ट्रेनर हैं, जो फिटनेस ट्रेनर हैं, उनसे जो पीछे रह जाते हैं वो सिर्फ पैसे की कमी से। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर के जैसे ज्यादा अच्छे हैं या हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन रह जाते हैं पैसे की वजह से। क्योंकि इस चीज में पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि डाइट लेनी है, सब कुछ लेना है। फिर इंसान शादीशुदा है तो उसके अपने बच्चों की फीस भी भरनी है। तो हर इंसान यही सोचता है कि मैं ये पैसे अपने ऊपर खर्च करूं या अपने बच्चों पे। तो बहुत सारे इंटरव्यू आपने देखे होंगे, काफी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हो गए, जिन्होंने यहाँ तक कि कहा है कि इनको बॉडी बिल्डर के, कईयों की वाइफ ने स्टेटमेंट दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, कि मैंने अपने पति की मतलब जब ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे तो मैंने अपने मंगलसूत्र बेच दिया, या मैंने अपने चूड़ियां बेच दी, गोल्ड का कुछ बेचा। तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो इंडिया में थोड़ा सा जो कमी है वो सिर्फ पैसे की वजह से, और कुछ नहीं है। पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है इस लाइन में। तो एक प्रॉपर अगर कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है तो उसका एवरेज खर्चा कितना आ जाता है? मैम, डिपेंड करता है कि उसको कितना वेट बढ़ाना है या कितना वेट लूज करना है, उस पर डिपेंड करता है। मिनिमम अगर आप लेके चलो तो कम से कम, जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं अपना ही खर्चा लेके चलूँ तो सप्लीमेंट, जैसे कोई भी छोटे से छोटा सप्लीमेंट यूज करता हूँ मैं, या कोई प्रोटीन यूज करता हूँ, तो इन चीजों का खर्चा ही 25 से 30 हजार रुपये चला जाता है। उसके बाद फिर हम जैसे डाइट लेनी है, एग लेना है, चिकन लेना है, फ्रूट वगैरह खाने हैं, ड्राई फ्रूट खाने हैं, तो उसका खर्चा वो अलग जाता है फिर। जी। ओके, सो ये तो रही बात इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट की. मुझे इसके बारे में कुछ प्रॉस एंड कॉन्स पूछना है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है इस इंडस्ट्री का. एक इंडस्ट्री का जो पॉजिटिव लगता है कि आप हमेशा सदाबहार फिट रहेंगे, वो एक बहुत बड़ी चीज है. अनिल कपूर पता नहीं वो 60 की उम्र में है नहीं है, लेकिन हमेशा वो फिट रहते हैं.
आई एम श्योर राज कुछ आप ही लोगों से निकलेगा उस उनका, लेकिन व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ दिस इंडस्ट्री? पॉजिटिव मैम यही है कि आप फिट रहोगे, खुश रहोगे, नींद अच्छी आती है। आप कपड़े पहनो कोई भी अपनी चॉइस के, तो आप कपड़े पहन सकते हो, ठीक है। एक हेल्दी शरीर रहता है, हेल्दी माइंड रहता है, रिलैक्स रहता है इंसान। नेगेटिव तो बहुत सारे हैं, आप नेगेटिव गिनने बैठोगे तो मतलब इतने सारे नेगेटिव हैं कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि इतने नेगेटिव कैसे हैं। इसमें हर कोई एक दूसरे की टांग नीचे खींचता है, कोई आगे बढ़ रहा है उसको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। और जैसे हमारा जैसे जिम है वो जुड़ा हुआ है सुबह, तो हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री में प्रोटीन वगैरह जैसे ये शॉप्स आती हैं, तो वो भी इसी के साथ ही जुड़ी हैं। अब वो नए बच्चों का ना फायदा उठाते हैं कई बार कि उनको डुप्लीकेट चीज देना। अब ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कई बार कि यहाँ पे मेरी जान पहचान की एक शॉप है, जैसे मैंने उससे अपना ही प्रोडक्ट मंगाया तो उन्होंने मुझे एक ओरिजिनल बोल के लोकल थमा दिया। अब जैसे ही मैंने उसको ओपन किया तो मां सर ये तो लोकल भेज दिया आपने। तो इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, जिससे लोगों की किडनी, लिवर कुछ भी खराब हो सकता है और किसी की जान भी जा सकती है लोकल प्रोडक्ट यूज करने की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में इस चीज का फायदा उठाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती उनको वो चीज थोड़े से पैसों के लिए बेच देते हैं, 2-4 हजार अपने कमाने के चक्कर में दूसरों की जान के साथ खेलते हैं। तो ये इस इंडस्ट्री का मैं मानता हूँ कि सबसे माइनस पॉइंट है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ये चीज। बाकी तो सब चलता है, लेकिन जो ये चीज है ये सबसे बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इस इंडस्ट्री में। ओके, सो मैं अगर आपकी बातों को समराइज करूं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे, फर्स्ट थिंग इज दैट यू ऑलवेज स्टे फिट एंड you are always in a perfect shape. Second is you meet and communicate with the people of the different walks who will enhance your you know career fitness business. Third हो गया कि you are a role model for the people. Obviously आप जब एक अच्छी बॉडी के साथ होते हैं you are the role model for the people. नेगेटिव्स यही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोग डिमोटिवेट करते हैं, अनकोऑपरेटिव होते हैं, डिफिकल्ट पीपल होते हैं, उनको आपको क्रॉस करना पड़ता है. Second is after a period of time there might be a complacent about that you are not able to take care of the good things. थर्ड है जॉब डिमांड ऐसा है कि आपको हमेशा अपने टोस पे रहना पड़ता है. मेरे ख्याल से जैसे एक आम इंसान एक दिन सुस्ता जाता है, एक आलस कर लेता है कि चलो यार आज नहीं करना, लेकिन आप लोगों के साथ ये चॉइस नहीं रहती होगी क्योंकि एवरी डे यू हैव टू बी फिट. अंटिल अनलेस आप फिट हैं तब तक दुनिया आपको नहीं देख के कोई जिम में नहीं आएगा. ऑब्वियसली दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच आई फील. नाउ इससे बाद हम एक छोटे से और क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट नेम्स इन दिस इंडस्ट्री. एक तो जिम इंस्ट्रक्टर हो गया, फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो गया, पर्सनल ट्रेनर हो गया. इसके अलावा और क्या क्या नाम आते हैं इसमें अगर किसी बंदे को अपना करियर बनाना है और वो नहीं चाहता कि उसको फिटनेस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बोला जाए या कुछ है, तो और क्या क्या हम डिफरेंट रोल्स से उनको बुला सकते हैं? ऐसे तो मैं बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे हेल्पर है, ट्रेनर है, पर्सनल ट्रेनर हो गया, मैनेजर हो गया उसके ऊपर। तो वो डिपेंड करता है इंसान की काबिलियत पे। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उसको कितनी नॉलेज है। अब जैसे मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। अब बहुत सारे ऐसे जैसे मैं किसी दूसरे जिम में जाता हूँ और वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करूँ, अपना जिम ना करके दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करूँ और वहाँ पे मैं अपने बायोडाटा दिखाता हूँ उनको, तो वो उस बायोडाटा के बिहार पे और मेरे इंटरव्यू के बिहार पे वो मुझे जॉब ऑफर करेंगे कि मुझे मैनेजर बनाना है, पर्सनल ट्रेनिंग देनी है। ओके, आई बिलीव यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है.
So इसमें एक थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। सोनू जी, आप हमारे साथ बने हुए? जब मिस्टर सोनू, आप हमारे साथ बने हुए हैं अभी? हेलो कविता, कैन यू हियर अस? हेलो। हाँ, अब मेरे ख्याल से नेटवर्क की सर एक बार दोबारा से आपको ये बात बोलनी पड़ेगी कि फिटनेस इंडस्ट्री में जी सैलरी क्या अरेंज करती है? अगर कोई बंदा किसी एक अच्छे जिम में, जैसे एलिमेंट्री हो गया, गोल्ड जिम हो गया, या बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जो जिम्स के जो चलते हैं विच आर मल्टीफोल्ड, आप एक ही जिम के नाम से आप बहुत जगह फ्रेंचाइजी होती है उनकी या कुछ। तो एक फिटनेस जी जी जो नॉर्मल ट्रेनर और एक पर्सनल ट्रेनर में एक तो डिफरेंस आप हमें बताइए, क्या डिफरेंस रहता है? और दूसरा, who should go for a personal trainer and who should go for a normal gym? और जिम का जो जा रहे हैं as it is a regular investment, because obviously you're paying money for either an annual membership or a half yearly membership, जो भी लोग लेते हैं उसमें जो आप एक यूथ को क्या मोटिवेट करेंगे, कैसे शुरू करना चाहिए, क्या है, इफ यू कैन शेयर दैट, फिटनेस इंडस्ट्री में भले ही वो करियर ना बनाए, एक रेगुलर फिटनेस के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैम, जैसे कि अपना फिट रहने के लिए आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि मुझे मॉडलिंग में जाना है या एक्टर बनना है या कुछ बनना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको शौक होता है कि हम फिट हो, हम अच्छे दिखें। ओके और रही बात इसकी कि एक पर्सनल ट्रेनर और ट्रेनर जो होता है उसमें क्या फर्क होता है। एक ट्रेनर होता है नॉर्मल जो सबको एक्सरसाइज कराता है। एक पर्सनल ट्रेनर जो होता है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, जिसने ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मान लो मैं हूँ, अब मैं आपको बताऊं कि मैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, मैंने इतने की है, मैं सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ, मैं नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं देता। तो इसमें थोड़ा सा ये फर्क हो जाता है बस। कोई भी ट्रेनर पर्सनल ट्रेनिंग दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्सनल ट्रेनर अलग होते हैं। किसी भी जिम में आप जाओ, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको किसी की ट्रेनिंग अच्छी लग रही है तो आप उसको पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो उससे। वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। जिम में जो भी क्लाइंट आते हैं, कोई भी किसी को एक्सरसाइज करा रहा है, अगर किसी की एक्सरसाइज उसको पसंद आई है, उसको फर्क लगा है उससे, तो फर्क लगने के बाद वो उसको हायर कर सकते हैं कि मुझे आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है। और किसी की पर्सनल ट्रेनिंग किसी को क्लाइंट को अच्छी लगती है, वो छोड़ के दूसरा चेंज कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्सनल ट्रेनर अलग लेते हैं या ट्रेनर अलग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे जिमों में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो ट्रेनर होते हैं वो पर्सनल ट्रेनिंग देने ही जाते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं भी एक दो जिम में पर्सनल ट्रेनिंग देने जाता हूँ, क्योंकि वहां पे मेरे क्लाइंट बने हुए हैं। और डिपेंड करता है हमारे टाइम पे कि हम वहां पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो टाइम पे डिपेंड करता है और क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि हमारी जो हम उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं वो उसको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, और उसको वो रिजल्ट हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। अगर हम किसी को रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो कोई हमसे नहीं लेगा, वो हमें चेंज कर देगा। तो ठीक है। ये फर्क है इसमें। और कोई भी अगर इसमें आना चाहता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी को अपना बॉडी अच्छी बनानी है और अपना फिट रहना है, अपना शरीर अच्छा बनाना है, तो उसको सबसे पहले अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि मुझे ये जाना है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसको डाइट के अकॉर्डिंग छोड़नी पड़ेंगी। जैसे तला हुआ नहीं खा सकते हम। अभी आपको बताया था मैदा के आइटम, वो तो कोई भी है, नॉर्मल इंसान है, अगर मैदा के आइटम ना खाए तो वैसे ही स्वस्थ रहेगा। तो यही है स्टार्टिंग बेस इसकी, कि कोई भी आ सकता है, कोई भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्पेशल लोग ही बन सकते हैं बॉडी बिल्डर या कुछ है। सब अपना शरीर अच्छा बना सकता है, कोई भी बना सकता है, कोई भी फिटनेस मॉडल बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत और आपको डाइट की बहुत जरूरत है। वेरी वेल सेड। लास्ट क्वेश्चन जो आपसे मुझे पूछना है, आजकल जब से ये कोरोना वायरस और कोविड का आया है, बहुत सारे ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर्स आते हैं जो कि अपने ऑब्वियसली इंस्टाग्राम में या फेसबुक में हर जगह डालते हैं कि वी आर द सेलिब्रिटी वंस, किसी के साथ फोटो खींची, कुछ हुआ, और किसी जगह पे उन्होंने डाला कि भाई हम आपके 3 महीने में इतना ट्रांसफॉर्म कर देंगे, 2 महीने में इतना ट्रांसफॉर्म करेंगे, या 100 डेज का, 50 डेज का पैकेज की बात करते हैं एज कंपेयर टू व्हाट इज द कन्वेंशनल जिम। तो आप जो बच्चे उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं या जो उस चीज को फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं, मे इट भी जैसे हेल्दीफाई का एक ऐप है जो आप यूट्यूब में आप काफी बार देखते हैं, एंड देर आर मल्टीपल अदर एप्स विच से कि भाई हम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बोलते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट आर दे इनटू, और इनसे कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है?
सोनू जी, आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा है शायद। ऑनलाइन किसी से पीटी ले रहे हो बहुत सारे। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है अब आपकी। हेलो। हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। हाँ जी जी, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो मैंने भी देखा है कि किसी का जो कोच है वो मुंबई से उसको नॉलेज दे रहा है वीडियो कॉलिंग पे। तो वीडियो कॉलिंग पे अगर बाई चांस आप मुझे और अपने आप को आप सोच के देखिए कि मैं आपको वीडियो पे समझा रहा हूँ कि आप ये करिए वो करिए, तो वीडियो पे आप इतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे वीडियो कॉलिंग पे। एक जिम में जाके प्रॉपर वैसे अगर किसी से ट्रेनिंग ले रहे हो तो मैं मानता हूँ कि वो बेटर है ना कि वीडियो कॉलिंग पे। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ और चंडीगढ़ में कोई है और मैं उसको वीडियो कॉलिंग पे बता रहा हूँ तो मैं इतने अच्छे से उसको गाइड नहीं कर पाऊंगा। अगर उसके जैसे वो जिम में वर्कआउट कर रहा है तो वहां पे जो कोच है वो अच्छे से उसकी मूवमेंट देख सकेगा कि ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, क्योंकि कोई भी है वो वीडियो कॉलिंग लेके या अपना फोन लेके बार बार मशीन पे तो ऐसे सेट नहीं कर सकते कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ ये देखो मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। वो सिर्फ एक शेड्यूल बता देते हैं वीडियो कॉलिंग पे कि आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, आप ये करने के बाद आप ये खाओ। तो बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन मेरी नजर में वो सही नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सोनू जी। नॉर्मली क्या होता है कि जो बंदा अपना जिम में जा रहा होता है वो 1 साल 2 साल उसने कर लिया और उसको लगता है कि भाई बहुत सारी बात है, जैसे हम भी कई बार जिम में जाते हैं तो हम देखते हैं जो बंदा रेगुलर है वो दूसरों को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो। रिजर्व टू अ प्रोफेशनल ट्रेनर, जैसे आप जिम में होंगे, आपके पास भी बहुत सारे लोग होंगे जो 1 साल 2 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग दूसरों को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं नहीं ऐसे करो वैसे करो, मतलब बड़े प्रोफेशनल वे में, बड़े पर्सनलाइज वे में। उनमें और एक प्रोफेशनल ट्रेनर में क्या अंतर होता है एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विद द नेकेड आईज? क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता, जो बंदा नया नया आया होगा उसको क्या मालूम कि वो जिम का बंदा है या नहीं बंदा है, वो तो उसको इंस्ट्रक्ट करा रहा है और वो उसके साथ चलता रहता है। और कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जिम में मालिक वहीं पे बैठा हो या जो जिम का मेन बंदा हो वहां पे बैठा हो, वो कई बार अपने इंस्ट्रक्टर के हाथ में लोगों को छोड़ देते हैं। सो हाउ कैन अ पर्सन आइडेंटिफाई दैट थिंग कि वो वाकई एक जिम का इंस्ट्रक्टर है या जस्ट उसने मतलब रेगुलर बंदा है जो आपको बता रहा है। और वो आई एम श्योर वो हानिकारक भी होगा क्योंकि व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम जो आपके कॉलेजेस हैं जो फिटनेस के इंडस्ट्रीज हैं, दे एक्चुअली टेल यू कि विच एंगल हैज टू बी यूज। जब आप बाइसेप करते हैं ट्राइसेप करते हैं, आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि किस एंगल से करना चाहिए, कितने घुटने को मोड़ना है, कितने घुटने को नहीं मोड़ना है। वेयर विजर्विस टू द पीपल जो रेगुलर आते हैं वो आपको इंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। तो कैसे एक बंदा उनको आइडेंटिफाई कर सकता है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ टाइम जिम करते हैं और अपने आप को ट्रेनर समझने लग जाते हैं। ये हर जिम में होता है और फिर वो ऐसा करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही बोला है कि कोई भी है उसको जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो वो ये समझता है कि हमें सब कुछ आ चुका है। और कोई अगर सही कर रहा है तो उसको जानबूझ के नहीं आप ये गलत कर रहे हो, आप ये ऐसा करो, आप ये ऐसा करो। कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो कुछ परसेंटेज होते हैं 1 या 2%, वो हर जिम में मिल जाएंगे आपको। लेकिन उनसे कराने में और जो हमारे ट्रेनर हैं उनमें दिन रात का फर्क होता है, क्योंकि एक जो ट्रेनर होता है वो पर सर्टिफिकेट लेके आया हुआ है, वो प्रॉपर उसको पढ़ के आया हुआ है, मसल के बारे में जानता है। तो ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। ट्रेनर नहीं है तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। ऐसे अपने ट्रेनर से मिलो, आप उनकी सुनो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दोस्त हैं आपस में, और मान लो एक दोस्त जिम कर रहा है 2 साल से, दूसरे दोस्त ने अभी स्टार्ट किया है। अब फिर वो उससे पूछता है कि आप क्या खाते हो, आपकी बॉडी बड़ी अच्छी हो गई है। तो फिर वो उनको बता देता है कि मैं ये खाता हूँ। वही चीज वो उठा के ले आते हैं और वो चीज खाने लग जाते हैं, जबकि वो किसी से डिस्कस नहीं करते। बाद में ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो ऐसा भी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं सबको समझाता हूँ कि ऐसा मत करो, क्योंकि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। कोई चीज किसी को सूट कर रही है, कोई प्रोटीन किसी को सूट कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको भी सूट करेगा। कोई चीज आप ले रहे हो, आप इंजेक्ट कर रहे हो अपने आप को, आप स्टेरॉइड ले रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो किसी और को भी लेना चाहिए। ये अपने पहले आप कोच से डिस्कस कीजिए, क्योंकि वो जो आपका दोस्त है कोई भी है, उसने सिर्फ उस किसी से नॉलेज लिया है, उसने एक गाइडेंस लिया है कि भाई मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब उसने किया है। आपने अगर वही चीज उसके साथ करोगे तो आपके साथ गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है।
तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे एक दूसरे को फॉलो कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, मैंने ये किया था तो आप भी ये करो, जबकि ऐसा बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे एक दूसरे को फॉलो करके भी चीजें नहीं लेनी चाहिए। अपने कोच को देखो, उनसे पूछो, उनसे मीटिंग करो कि सर मेरी डाइट क्या होनी चाहिए, मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए, अगर मैं प्रोटीन भी लेता हूँ तो मैं लूं ना लूं, क्योंकि हर किसी को प्रोटीन प्रोटीन लेना है या जा रहे हो और आपको इतना अच्छी बॉडी, मतलब कि बहुत जरूरी नहीं है कि आप प्रोटीन वगैरह लो। मैं नहीं कहता हूँ इसके लिए प्रोटीन आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये चीज लो, आप वो चीज लो, आप अपने आप को इंजेक्ट करो, कोई जरूरत ही नहीं है। एक हेल्दी लाइफ आपको जीनी है तो आप अपना वर्कआउट करो, अच्छा खाओ पियो, अपनी डाइट से प्रोटीन आप पूरा कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई कंपटीशन खेलना है या आपको मॉडलिंग के अंदर जाना है, आपको एक्टर बनना है या आपको जिम ट्रेनर बनना है, क्योंकि देखिए जिम ट्रेनर एक जब तक अच्छा नहीं दिखेगा तो कोई भी उसको जाके ये नहीं मानता कि ये जिम ट्रेनर है। क्योंकि जिम ट्रेनर की थोड़ा बॉडी अगर अच्छी है, फिजिक अच्छी है, तो लोग भी ये सोचते हैं कि हाँ ये हमें रिजल्ट दे सकता है क्योंकि ये खुद अच्छा है। तो इसलिए उनको मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। तो फॉलो करें अपने ट्रेनर को, अपने दोस्तों को फॉलो ना करें, ये बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। परफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम जिम ट्रेनिंग, आप लोग कहाँ पे जा सकते हैं? यू कैन गो टू द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पे भी फिटनेस इंस्ट्रक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस में भी कई जगह जहां अपने जिम्स होते हैं, उन लोगों को फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स की जरूरत होती है। टॉप नॉच होटल्स हैं, टॉप-नॉच होटल्स एंड इंडस्ट्री रिसॉर्ट्स में फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स की जरूरत होती है। ऑब्वियसली व्हेन पीपल कम फॉर अ वीक लॉन्ग थिंग, they would like to go to the gym and they would like to go to the instructor who is actually telling them. नेशनल एंड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस के क्लब में जरूरत होती है। स्पोर्ट्स क्लब्स एंड एजुकेशन क्लब्स रिक्वायर दैट। सिने स्टार्स, मॉडल एंड बिजनेसमैन एंड स्पोर्ट्समैन सो ऑन, they also look forward for the fitness instructor. So this is the huge industry. एंड लास्ट टाइम हमने एक्टिंग का किया, इस बार हमने बॉडी बिल्डिंग का किया, नेक्स्ट टाइम हम ब्यूटिशियन का करेंगे विद डॉक्टर ब्लॉसम कोचर। विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट कविता टू शेयर हर expert comments. Thank you, Sonuji. It is wonderful listening to both of you. जैसे सोनू जी ने कहा, आप फिटनेस इंडस्ट्री में खुद एक ब्रांड है, सो इसीलिए आपको अपने आप को मेंटेन करना, सेल्फ डिटर्मिनेशन रहना, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेशन, these are the key success mantras as mentioned by Sonu ji. This will take you to the heights and definitely आप कहीं भी किसी भी फील्ड में करियर अगर बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन इज मस्ट। आपकी राइट एजुकेशन होती है तो जब आप बात करते हैं तो वो पता चलता है कि ट्रांजिशन, सोनू जी ने बताया एक्सपर्ट और एक नोविस में क्या अंतर होता है। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और एक नॉलेज एस्पेक्ट, जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कंबाइन होता है, यू कैन सी द डिफरेंस दैट कम्स आउट। सो आई वुड सजेस्ट दोज हु आर लुकिंग फॉर इट, and especially if you are looking for the jobs in government, in the fitness resorts and other things, they need the certificate. They want the people not just with a good body, they need the people with the right knowledge, mix of right knowledge and the fitness to take the charge of their fitness center or to instruct the people, because it is about the health is such a I would say delicate thing, and हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हम किसी की हेल्थ को इफेक्ट करना चाहते हैं तो हमें खुद के लिए एक तो अपने आप को बेहतरीन बनाना है और अपनी नॉलेज को भी बेहतरीन बनाना है। तो उसके लिए आप जरूर सर्टिफिकेशन चाहिए, एज मेंशन्ड बाय सुनंदा एंड सोनू जी, लिस्ट ऑफ कोर्सेज दैट यू कैन डू डिपेंडिंग ऑन कि आपका ये कहते हैं आपका मोटिव क्या है। आप जिम ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप जिम ओनर बनना चाहते हैं, आप फिजिकल थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं, या आप फिटनेस क्या कहते हैं आप यूट्यूबर या ब्लॉगर बनना चाहते हैं। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जो फिटनेस इंडस्ट्री में थे ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, जब उनको इतना इम्पैक्ट किया है, दे हैव मूव टू ऑनलाइन थिंग, टीचिंग ऑनलाइन थिंग। ऑल्दो सोनू जी ने बोला जब
आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पेशली फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, दैट टाइम फिजिकल कोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गाइड यू एट द लेवल. बट yes, YouTube and YouTubers, fitness bloggers, they have also given a pathway to a new dimension of career, which is about just knowledge spreading and guiding. We still need the physical. जैसे हम स्कूल में कहते हैं ना, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत हो गए, सब कुछ हो गए, बट स्कूल को कोई नहीं निकाल सकता है ऐसे एज ए यू नो. जिम को हम नहीं निकाल सकते हैं. जो फिजिकल प्रेजेंस है, फिजिकली अप्लाइंग द नॉलेज इन प्रेजेंस, we cannot take that out. So with that, I like to thank Sonu ji and Sunanda for being with us and guiding the youth about how they can pursue their career in the fitness industry. So stay, maintain the social distance despite the unlock, and stay healthy and stay fit. Thank you.